Now today's topic is based on proofs based on Cartesian product. Yesterday we have discussed what is Cartesian product and also defined in set builder form definition of Cartesian product. Today we will discuss some proofs regarding to Cartesian product. Now I will remind the set builder form definition of the Cartesian product again. So what is Cartesian product? Cartesian product basically product of two sets. Let A and B are two sets, then their Cartesian product is A cross B is equal to A comma B such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B. So what is Cartesian product? Cartesian product is just a product of two sets where A and B are two sets. Then Cartesian product of these two sets A, B will be a set of an ordered pairs such that small a belongs to first set capital A and small b belongs to second set, that is capital B. Why we say it is ordered pair? Because there is significance of ordered and also significance of pair. Yesterday I have already discussed about ordered pair, but today also I am reminding that what is ordered pair. Why we say it to ordered pair? Because there is significance of order and also significance of pair. Why we say pair? Because there is two elements, that is we can say pair, and significance of order is that first constituent of this pair must belongs to first set, that has been written here, and second constituent of this ordered pair must belong to second set. So this way we define the Cartesian product in the form of set builder form. Now now we will take some example like A is equal to x, y, z and B is equal to 1, 2. Then its Cartesian product will be A cross B is equal to x comma 1, x comma 2, आज हम बात करेंगे व्हाट इज y comma 1, y comma 2, z comma 1 and z comma 2. Now we can see that number of elements in this Cartesian product of A and B is 6. How this 6 will come? Cardinal number of this Cartesian product is equal to cardinal number of set A into cardinal number of set B. Cardinal number, ultimately this is also a set. So there should be also a cardinal number of this A cross B. A cross B, cardinal number of this A cross B will be equal to multiplication of cardinal number of first set into cardinal number of second set. In general form, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्लेन चेस प्रॉब्लम. in general form, if cardinal number of A is equal to m, or we can say that A is equal to A1, A2, so on Am, and cardinal number of B is equal to small n, or we can say that set B is B1, B2, so on Bn.
then in this situation cardinal number of A cross B is equal to m into n. तो mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कैसे mn पता चला? सेट A में कितने एलिमेंट हैं और सेट B में कितने एलिमेंट हैं, इन दोनों का सिंपल हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पता चल जाएगा। और इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स, सो वी हैव टू जनरलाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट। A cross B will be equal to A1 B1 A2 B2 so on A1 B2 A1 Bn. Similarly we will start from A2 B1 A2 B2 so on A2 Bn, again now so on. Last element of first set A, we will take An B1 An B2 so on An Bn। तो इस तरीके से जनरल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब इसमें हम लोग प्रूफ्स देखेंगे कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रूफ्स करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रूफ से भी, और सेट थियरी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। इस नाते ये ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली ये जो A क्रॉस B लिखा गया था ये सेट ही है, इसके सेट के एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स टाइप के हैं। वी डोंट हैव केयर अबाउट दैट विच टाइप्स ऑफ एलिमेंट, वी should only consider or we should only care about that there must be some elements। अब यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे सेट में एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये हैं एलिमेंट्स, बस एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्डर पेयर टाइप का है, बाकी इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी सेट की होल्ड हो रही। चाहे यहाँ की बात करें, ऑर्डर्ड पेयर हैं एलिमेंट, तो एलिमेंट किस तरह का उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सेट अगर ये सेट है कि नहीं ये पता करने के लिए। तो ये एलिमेंट्स हैं सब A1 B1 से लेके AM BN तक, तो ये अल्टीमेटली A क्रॉस B आपका सेट हुआ, तो सेट की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होंगी। सेट की प्रॉपर्टी जितनी पहले ऑर्डिनरी सेट में होल्ड होती थी सब के सब यहाँ पे भी होल्ड होंगी, और इस वजह से प्रूफ भी वैसे ही किया जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। जैसे फर्स्ट प्रूफ है A क्रॉस, उसको हम प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो है A क्रॉस B यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, और इसको हम लोग अब प्रूफ करेंगे कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो प्रूफ जो भी होगा वो एकदम सेट थियरी की तरह से ही होगा, क्योंकि ये एक सेट है और A क्रॉस B इंटरसेक्शन C करेंगे तो वो भी एक सेट ही मिलेगा। अभी हमने दिखाया कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद उसके एलिमेंट्स का केवल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन वो जो हमें मिलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट वो एक सेट ही होता है। तो उसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन ये ध्यान देना है कि एलिमेंट्स किस तरह का है। एलिमेंट्स जो जनरल एलिमेंट्स सपोज करते हैं वो ध्यान देना है। ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसका एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर।
तो हमें जो जनरल एलिमेंट सपोज करना होता है, वी हैव टू सपोज दैट जनरल एलिमेंट एक्स वाई कॉमा बिलोंग्स टू, यहाँ पे लेट लिख देंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये हमें सपोज करना रहेगा। हम ये नहीं सपोज करेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो वी हैव टू सेलेक्ट जनरल एलिमेंट अकॉर्डिंगली। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सो वी हैव टू टेक जनरल एलिमेंट एन ऑर्डर्ड पेयर। That's why we have taken x comma y as a general element belongs to A cross B intersection C. Now we will proceed. Then we will get x belongs to A and ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये क्रॉस जो होता है वो एंड से रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग जो जनरल डेफिनेशन पढ़े थे उसमें A क्रॉस B इज इक्वल टू लिखा गया था A कॉमा बी सच दैट A बिलोंग्स टू A कॉमा B बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पे एंड छिपा हुआ है, कॉमा लगने का मतलब एंड है, ये और नहीं है। तो ये एंड लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों कंडीशन मैंडेटरी। उसी तरीके से फर्स्ट पार्ट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड पार्ट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट एंड Y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। Now we can further explore this statement, x belongs to A and y belongs to B and y belongs to C। ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन एंड की तरह ही रिफ्लेक्ट होता है, इस वजह से y belongs to C हो जाएगा एंड करके। Now what we have to prove, if we will consider or care that thing, then we will get that this and is for cross or this and is for intersection। so this and x belongs to A and y belongs to B will be pairs, this will be paired with this one and this one, this will be paired with these two sets and we will get x belongs to A and y belongs to B and x belongs to A and y belongs to C। ये हमें लिखना रहेगा। अब यहाँ पे मैंने एंड और ये एंड दो अलग अलग तरीके से लिखा है, आप एक ही तरीके से लिख सकते हो, मैं केवल डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसा किया हूँ। उसके बाद अब आप देखिए, दिस इज डिफरेंट एलिमेंट। जब कभी भी डिफरेंट एलिमेंट एंड के साथ कंजक्शन हो तो उस एंड का रिफ्लेक्शन क्रॉस की तरह से आएगा, और जब कभी सेम एलिमेंट बिलोंग्स टू जब कभी डिफरेंट एलिमेंट, वो भी डिफरेंट एलिमेंट हो और वो आपके क्या नाम है कंजक्शन एंड के द्वारा हो, तो उसमें और उसके बाद सेट भी अलग अलग हो, तो वहाँ पे हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह से फिर आगे स्टेप में कंक्लूड करते हैं। तो इस वजह से x कामा y बिलोंग्स टू हो जाएगा A क्रॉस B, ये एंड आपका क्रॉस की तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए x कामा y बिलोंग्स टू A क्रॉस C हो जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंट होने की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट जब तक नहीं रहेगा, ये दोनों सेम एलिमेंट, ये दोनों सेट जो है वो सेम हो या डिफरेंट हो, कोई इशू नहीं है। एलिमेंट का डिफरेंट होना डिसाइड करेगा कि एंड क्रॉस की तरह रिफ्लेक्ट होगा या एंड इंटरसेक्शन की तरह रिफ्लेक्ट होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे दोनों सेट जो हैं वो अलग हैं कि सेम है, वो कोई इशू नहीं है, एलिमेंट्स आपके डिफरेंट हैं, ये इशू है। इसी वजह से आपका इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ है क्रॉस की तरह से। क्योंकि आप देखिए A इंटरसेक्शन B के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ लिखते हैं x सच डैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पे खास बात आप देख रहे हो, बोथ एलिमेंट आर सेम,
तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट अगर सेम है तो अब आप एंड की तरह से रिफ्लेक्ट करा इंटर कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह से भी रिफ्लेक्ट करा सकते हो और इंटरसेक्शन की तरह। लेकिन अगर दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन टू रिफ्लेक्ट एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेम नहीं है, इस नाते कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ही रिफ्लेक्ट होगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट हैं, बट बोथ एलिमेंट आर सेम, so we can reflect as a Cartesian product as well as a intersection, but our need is intersection, so we will reflect it as a intersection x gamma y. So x gamma y belongs to a cross b intersection a cross c। इस तरह से हो गया। अब आप इसके बाद देखिए this set will be as a superset and this set will be as a subset, because all the elements of this set belongs to this set. This set can include some more element, there is no boundation, so this will be superset. So it will be written as, hence conclusion will be written as A cross B intersection C will be subset of A cross B intersection A cross C. Further, its opposite we have to prove that, and so we will assume that, let us x comma y, or we can say another element a comma b belongs to A cross B intersection A cross C. There is no issue, we can take same element x comma y, and we can take also as a different element, but I have taken different element. A comma B belongs to A cross B and A intersection C. A comma B belongs to A cross B intersection A cross C. Now it will imply that first part belongs to first set, that is A cross B, and second part belongs to A comma B, sorry इंटरसेक्शन है तो ध्यान देना है, A comma B belongs to A cross B and A comma B belongs to A cross C। तो ये चीज़ थोड़ा सा केयर रखना है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। इंटरसेक्शन लिखने का मतलब है द सेम एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट एज वेल एज दिस सेट, सो आई हैव रिटन लाइक दिस। नाउ there is cross product, so we have to explore it as A belongs to capital A and second part of this ordered pair B belongs to second set, and A belongs to A and B belongs to C. Now we can see that this A belongs to A and A belongs to A, common in both, so it will be taken as a common, and we will get that A belongs to A belongs to A and B belongs to B and B belongs to C। तो ये एंड मैंने केवल डिस्टिंग्विश करने के लिए लिया है कि ये क्रॉस का रिफ्लेक्शन है या फिर इंटरसेक्शन का है। बाकी आप दोनों सिंबल यूज कर सकते हो, चाहे इस तरह का लिखो चाहे ऐसे लिख सकते हैं आप। अब इसके बाद देखिए हमें अपनी नीड को देखना रहेगा, हमें ये ले आना है। तो एंड यहाँ पे भी है और एंड यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेम एलिमेंट करस्पॉन्ड कर रहा है दोनों सेट से, तो इस एंड को हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इंटरसेक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों की तरह से रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, बट आवर नीड इज इंटरसेक्शन, सो वी विल रिफ्लेक्ट इट एज ए इंटरसेक्शन A cross A belongs to A and B belongs to B intersection C. Now we can see that
these two elements are different. So this and will be reflected as a Cartesian product, there is no doubt. So A comma B belongs to A cross B intersection C. Now this set will be as a superset and this set will be as a subset, because all the elements, because this is a representative element and it is representing all elements belongs to this set. Then So 8 will this be divided into 2 representative equal element half, 4, uh, these type of proves 4 that all the elements So of we this have set also initialized belongs to this set, but there is no foundation that it cannot include some other element. So this will be superset, we shall and compare so the left conclusion array will sum be to written first as element and right A cross B intersection A cross C is subset of A cross B intersection C. Now from equation 1 and equation 2 we can conclude that, hence from equation 1 and 2 we can conclude that both set are equal, and so A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. Now this is proven that. नेक्स्ट हम लोग और भी प्रूव करेंगे, लेकिन इसको हम एक बार और रिमाइंड करा दे रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि वो सेट के फ्लो में रहते हैं और पूरा प्रूफ जानते हुए भी गलत कर देते हैं। ये एजम्पशन जो करते हैं एलिमेंट का, वो ध्यान से रखना रहेगा। जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड ऑन प्रूव करना है, तो हमें ऑर्डर्ड पेयर ही जनरल एलिमेंट एज्यूम करना है। ये नहीं कि आप सिंपल एक्स लिख दिए कि एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो इट्स एलिमेंट विल बी एन ऑर्डर्ड पेयर। So this we have to care about this thing, because mostly students have done mistake regarding assumption of the general element. So we have to care about that what types of elements should be assumed when we are going to prove related to Cartesian product. So this is proof. अब यहाँ पे एक चीज ये भी देखना है, x बिलोंग्स टू, जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट सेट से, सेकंड पार्ट सेकंड सेट से, फिर उसके बाद आप इसको भी एक्सप्लोर कर दिए क्योंकि इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन की वजह से एंड की तरह रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन क्या प्रूव करना है उसको हमेशा कंसीडर करते रखना है। तो यहाँ पे जो चीज़ ले आना उसके हिसाब से, यहाँ पे जब आप मैनिपुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो वो चीज़ जब तक ध्यान में नहीं रहेगा आप मैनेज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे पेयरिंग करनी है, ये x बिलोंग्स टू a है, एंड आप उसी तरीके से कि जैसे आई हैव टू ईट मैंगो एंड बनाना एंड एप्पल, नाउ वी कैन से आई हैव टू ईट मैंगो एंड एप्पल एंड मैंगो एंड बनाना। वही चीज़ यहाँ पे मैनेज किया गया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट, लाइक दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट। तो ये एक चीज़ केयर आपको करना रहेगा। यहाँ पे केयर करने के बाद अब आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आप फिर कंफ्यूज हो सकते हो कि हाउ वी हैव टू रिफ्लेक्ट एंड एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड हाउ वी हैव टू रिफ्लेक्ट एंड एज ए इंटरसेक्शन। तो वैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली दिखेगा, बट there is important thing that when different elements belongs to sets, either sets are different or sets are same, there is no issue of regarding to set, but there is issue about elements, because these two elements are different. So 100% must be sure that when x comma y will be common or written like that, x comma y belongs, then this will be written as a cross b, nor a intersection b, because a intersection b में सेम एलिमेंट रहेगा। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है, अलग अलग एलिमेंट हैं। आप अगर ऐसे पाते हो कहीं पे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू
B. In this situation, we can write according to our needs, x comma x belongs to A cross B as well as x belongs to A intersection B. Both are correct. There is no issue because the ordered pairs may have both constituents same. It depend upon what sets have been taken. Hello student. Like Today for I am example, going numbers. if So we have 1, taken A is equal to A, 1 2 3 and plus B to we 8, have taken that is 1 3, then in this situation A8 A cross B is equal we to will get C4 minus 1 comma 1 So 1 we shall run the comma loop 3 for J. 2 comma 1 and 2 comma 3. We can easily see that this is an ordered pair Hello which have student. same Today constituents. we are So going there is from no E issue to R minus that 2, both 9, constituents may 5. be So same the or next not may value be is same. 3 3 It n may be minus same or 1. not may be same. There is no confusion about that. बट अगर आपको इंटरसेक्शन ले आना है रिफ्लेक्स करा के तो निश्चित तौर पे ये दोनों सेम होना चाहिए. अगर दोनों अलग हो गए, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो कभी भी आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो कि आप ऐसे लिख दिए x comma y belongs to a intersection B. That will be wrong. So extra care we have to taken when we will changing from one form to another form. Pause.